This is the lecture number 8 for the chapter Arithmetic Progression for the class 10th. And the last lecture we were discussing the exercise 5.3 and we have done up to question number 14. Now in question number 15, 16, 17 and up to 20 are some theoretical type question. To read it very carefully. A contract on construction job specify a penalty for the delay of completion beyond a certain date as follows. 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, and so on. The penalty for each succeeding day is 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay a penalty if he delay the work by 30? तो पहले दिन उसको 200 का पेनल्टी है, नेक्स्ट डे 250 का पेनल्टी, थर्ड डे 300 का पेनल्टी, एंड सो ऑन. द पेनल्टी इज इंक्रीजेस बाय 50 rupees every day, and it is given that how much penalty he has to pay when he delay by 30 days. तो इसका मतलब आपको 30 days का सम निकालना है, मतलब आपको S30 निकालना है, जिसकी फर्स्ट टर्म आपको 200 है, कॉमन डिफरेंस आपका 50 है, तो n/2 2 into a प्लस n-1 into d. d यहाँ पर आपका 50 है, तो सिंप्लीफाई करने पर जो टोटल आ रहा है 27,750. तो पेनल्टी जो उसको देनी है इज इक्वल टू ₹27,750 फॉर डिले ऑफ, इस तरह से लिखना है, डिले ऑफ 30 डेज. 30 डे का डिले होने पर उसको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द थर्ड एक्सरसाइज. Now in question number 16, what it says that a sum of 700 is to be given in cash prize to the student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding price, शुरू का हर एक प्राइस जो है पहले वाले से 20 रुपीज़ कम है, तो आपको हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, सो लेट द फर्स्ट प्राइस बी, फर्स्ट प्राइस हमने क्या मान लिया, हमने ₹A मान लिया, पहला प्राइस हमने ₹A मान लिया. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइस कितने का आ जाएगा, A-27 का, कितना रुपीस कम है, 20 रुपीस, तो A-20. थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, A-60, 20 रुपीस कम है, तो A-40. फोर्थ प्राइस कितना हो जाएगा, A-60 एंड सो ऑन. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस माइनस का 20 आएगा, क्योंकि 20 रुपए कम है तो कॉमन डिफरेंस कम हो रहा है. एन हमारे पास 7 है, 7 प्राइजेस हैं, और S7 हमें गिवन है. 7 प्राइस का जो टोटल सम है वो 700 रुपीज है. तो निकालो n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस का 20 है, तो 700 आ गया. तो सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है जो कि 160 है, जो कि 160. तो इसका मतलब पहला प्राइस आपका 160 का है, तो हम निकाल लीजिए. फर्स्ट प्राइस कितने का हो गया, 160 का, 20 रुपीज़ कम करते जाइए, 140 का. थर्ड प्राइस हो गया आपका 120 रुपीज़ का. फोर्थ प्राइस हो गया 20 रुपीज़ और कम कर लीजिए, 100 रुपीज़ का. फिफ्थ प्राइस हो गया आपका 80 रुपीज़ का. सिक्स्थ प्राइस हो गया 20 रुपीज़ और कम कर लीजिए, 60 रुपीज़ का. और आपका जो सेवेंथ प्राइस हो गया वो आपका 40 रुपीज़ का हो गया. तो हमने क्या माना था, पहला प्राइस A, नेक्स्ट प्राइस A-20, नेक्स्ट A-40, A-60, 20 रुपीज़ कम होता चला जा रहा है. तो कॉमन डिफरेंस -20, क्योंकि 20 रुपये कम हो रहे हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 7, तो S7 700, क्योंकि 700 रुपये, 700 रुपीज़ इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 स्टूडेंट्स. तो S7 आपको 700 गिवन है. 16th क्वेश्चन था ये आपका. ओके, so this is the question number 16. Now in question number 17, you can read it. What is given in question number 17? It is given that in question number 17, in a school, a student thought of planting a tree in and around the school to reduce the air pollution. It was decided the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. हर एक स्टूडेंट उतने, हर एक क्लास उतने ही ट्री will plant. How the number of the class it is, means if it is the first class then it will plant only 1 tree. If it is second class it will plant 2 trees, and if it is a third class then it will plant 3 trees, and so on. If it is a 12th class then it will plant 12 trees,
and it is given that there are how many sections? There are 3 sections in each class. So how many total trees will be planted? So first class, it will plant how many? 1 tree, first class, and there are 3 sections, so 3 into 1. Second class will plant 2 trees and multiply by 3 because there are 3 sections. Third class will plant 3 trees and the number of sections are 3, that is they will plant 9 trees and so on. The 12th class will plant 12 trees and there are 3 sections. So 3 plus 6 plus 9 up to 36, which is an AP. How many terms? 12 terms. तो A आपके पास 3 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 है एंड S 12 पता करना है, तो n/2 A प्लस L, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है 36 इस तरह से. तो n/2 A प्लस L वाला हमने फॉर्मूला यूज कर लिया. तो 234 trees will be planted in the school. Clear? Now 18. The figure is given in question number 18. The figure is given that there is a spiral. एक spiral है हमारे पास इस तरह का. And it is given that like this spiral है. Like this spiral. Like this it is going on. इस तरह सा स्पायरल है. ये आपका B, this point is A, and it is given that the length of this spiral number 1 is L1. Let us call this spiral number be L2. Let us call this spiral number be L3. This call the spiral number be L4, and so on. So how many spirals are there in this? It is given that the spirals, how many spirals are given? There are, read in question number 1, a spiral is made up of successive semicircle with a circle alternately at A and B, starting with the center at A. A से start हुआ है, starting with A. तो हमने इसको इधर से लीजिए, starting with A and this is B. So it is given that the radii of point 1, मतलब पहले सेमी सर्कल का जो रेडियस है, it is given that it is 0.5. और दूसरे सेमी सर्कल का स्पायरल का जो रेडियस है इट इज इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर. थर्ड सर्कल का रेडियस है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. यू हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल व्हेन देयर आर 13 स्पायरल्स. तो मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 हाउ मेनी अप टू L13. जो लेंथ है इट इज अ सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज, सेमी सर्कल का पाई आर होता है. द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ ए सर्कल इज 2πr, और आपका सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ये इट इज πr1, πr2, πr3 अप टू πr13. तो 13 टर्म्स है. आप इसमें पाई कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R13, और हमें इसमें R गिवन है 0.5, 1.0, 1.5 एंड सो ऑन. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 13 टर्म्स आर देयर. इसमें 13 टर्म्स हैं. तो आप इसमें फर्स्ट टर्म हो गया 0.5, कॉमन डिफरेंस भी इसमें से उसको माइनस करेंगे 0.5. तो आप पाई इंटू S13 निकाल लीजिए. सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ एन AP. सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ एन AP. ठीक हो गया. तो इसके हो गया पाई n बाय कितना हो जाएगा, n/2, 2 इंटू A दैट इज 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी कितना है 0.5 है. तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप. 13/2 इंटू पाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/2 सॉल्व करने पर यू आर गेटिंग दिस एज, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट इज़ 1 प्लस 12 इंटू 0.5 और 13 π/12, और ये आपका 12 इंटू 0.5 आ जाएगा, 12 इंटू 0.5 617 और 13/2 22/7, 22/7 लिख दो. पाई की वैल्यू 7 से 7 कैंसिल. तो ये आपके पास सॉल्व करने पर आ रहा है 143 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द स्पायरल कंटेनिंग 13 सेमी सर्कल्स. कंटेनिंग 13 सेमी सर्कल्स. सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है पाई आर होता है. तो रेडियस सबका अलग अलग है, R1, R2, R3 एंड सो ऑन. और ऐड करने पर आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है. यू आर गेटिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन.
In question number 19, again a figure is given. There is a 200 logs are stocks. एक stock है, आप you can see the figure in your NCERT book. 200 logs are stock in a following manner. सबसे पहले 20 logs रखे हुए हैं, उसके बाद after that it is 19, सबसे उसके ऊपर आफ्टर दैट इट इज़ 18, उसके ऊपर नंबर ऑफ लॉग्स 17 है एंड सो ऑन, और इनका जो टोटल सम है 200 गिवन है. तो ये AP बना रहा है जिसकी फर्स्ट टर्म आपका D है. कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20 दैट इज -1 गिवन है. SN आपको गिवन है. अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? टोटल सम गिवन है, टोटल लॉग्स का 200. हाउ मैनी रोज आर देयर इन 200 लॉग. ये रोज कितनी है, मतलब पहली रो में 20 है, दूसरी रो में 19, थर्ड रो में 18, देन 17 एंड अप टू n टाइम्स, हमें पता नहीं कितनी है. तो सबसे कितने इसमें रोज हैं और सबसे ऊपर वाले रो में कितने आपके लॉग्स रखे हुए हैं. तो हम इसमें SN का फॉर्मूला लगाएंगे. 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 200. तो n हमें पता नहीं है, फर्स्ट टर्म आपका 20 है, n अगेन हमें पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास -1 है. तो पहले हम पता करेंगे इसमें कितनी रोज हैं लॉग्स की. So by multiplying, opening the bracket, you are getting the chord equation as n square minus 41n plus 400 equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करके chord equation बन रही है. When splitting the middle term, आप इसको splitting the middle term करके n minus 16 is equal to 0. स्प्लिट द मिडिल टर्म करके तो n की वैल्यू 25, n की वैल्यू 16. अब प्रॉब्लम इसमें ये आ गई, तो नंबर ऑफ रोज 25 और 16 आ गए. तो मतलब जो लॉग्स की रोज लगी हुई हैं तो कह रहा है 25 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं. अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. नंबर ऑफ रोज जो लॉग की लगी होंगी दैट कैन बी ओनली 25 और 16. अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इसमें रोज आपकी 25 है या 16 है? तो हम ऐसा कर लेते हैं कि आप n 25 और n 16 निकाल लो कि 25th रो में कितने लॉग्स हैं और 16th रोज में कितने लॉग्स हैं. तो a प्लस 24d, इसमें a की वैल्यू रख लीजिए. a कितना है? 20 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास इसमें था -1, तो इसमें -4 आ रहा है. तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो nth रो में, मतलब जो 25th रो आ रही है इस लॉग्स की, उसमें -4 लॉग्स, तो नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव. तो इसका मतलब उसमें 16 रोज ही हैं. तो a प्लस 15d, a कितना है? 20, 15 इंटू -1, तो ये आपका 5. तो मतलब सबसे लास्ट वाली रो में जो लॉग्स की लगी हुई है दैट वी हैव ओनली 5 लॉग्स. तो यही पूछा गया था, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो. टॉप रोज की 16th रो है, तो 16th रो में आपकी 5 लॉग्स रखी हुए हैं. This is the question number 19, which is a good question. In question number 20 of this exercise, read it again. There is a race. In a potato race, a bucket is एक bucket है हमारे पास, and place a starting point which is 5 meter from the first potato. फर्स्ट पोटैटो यहाँ पर रखा हुआ 5 मीटर की दूरी पर. नेक्स्ट पोटैटो इज पुटिंग इट हेयर विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 के डिस्टेंस पर ये पोटैटोज रखे हुए हैं लाइक दिस, मीटर्स मीटर्स एंड मीटर्स. तो व्हाट इज द रेस इज दैट ईच कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट. यहाँ से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट पोटैटो उठाएगा एंड इट विल बी बैक. तो फर्स्ट पोटैटो उठाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 5 + 5, दैट इज 5 + 5. Now, you have to find how much distance will the competitor will run if there are how many potatoes. It is given how many potatoes are there to pick up the next potato, and she continues to give with the still potato, and how many potatoes are there. Read it. In a potato, a bucket is placed at a starting point which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed at 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes. तो इस तरह से हमारे पास 10 पोटैटोज है, 10 टाइम्स है इस तरह से. तो फर्स्ट पोटैटो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल विद द कंपटीटर टू पुट द फर्स्ट पोटैटो? 5 + 5. सेकंड पोटैटो फ्रॉम दिस टू दिस दैट इज 8, 3 + 5 8 एंड बैक 8, तो 8 + 8. फॉर द थर्ड पोटैटो 3 + 3 + 5 दैट इज 6 + 5 11 and back 11, that is 11 + 11 and so on.
So it is coming out to be 10, 16, 22 and this up to 10 times. तो इसका मतलब आपको S10 पता करना है. A आपके पास 10 है, कॉमन डिफरेंस 16 minus 10 that is 6 और S10 आपको पता करना है. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल n by 2 2 into A plus n कितना है 10 है, 10 minus 1 into common difference 6. So this is coming out to be total distance traveled is 370 meters to pick up the 10 potatoes. So total distance traveled by the competitor to pick up the 10 potatoes is 370 meters. So it is a good question of the potato race. पहला पोटैटो को हटाने के लिए 5 + 5 10 मीटर डिस्टेंस, सेकंड पोटैटो स्टार्टिंग के लिए 5 + 3 6 plus 5 + 3 8 8 + 8 16 meter and so on. Okay, so this is the completion of this chapter, arithmetic progression for the class 10th. Good luck. Thank you.